Hello student, today we are going to start the second lesson of Business Studies, class 12th. The name of the lesson is Principle of Management. As we know, in the first lesson we have discussed about what is management. In this we have to discuss about principle of management. So first of all we have to discuss about the father of principle of management, that is called Henry Fayol. Henry Fayol was a French mining engineer and director of mines who developed a general theory of business administration that is often called Fayolism. He and his colleagues developed this theory independently of scientific management but roughly contemporaneously. Like his contemporary Frederick Winslow Taylor, he is widely acknowledged as the founder of modern management method. तो एक्चुअली दो पर्सन थे, एक हेनरी फॉल और फॉलर, दोनों ने मिलकर के मॉडर्न मेथड ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किया था। ये बायोग्राफी दिया गया है फॉयल का। फॉयल वाज बर्न इन 1841 इन ए suburb of Istanbul, Ottoman Empire. His father was appointed superintendent of works to build the Galata village, and due to which the family returned to France in 1847, where Fayol graduated and became a mining engineer. In that period, in 1888, he became managing director, and on that period, he just going to adopted the basic of management, and he took the position over 30 years until 1918. By 19, the company was one of the largest producer of iron and steel in France and was regarded as a vital industry. In that period, he wrote a famous book. The name of the book is Administration Industrially and Generally in 1960. And Frederick Winslow Taylor published his Principle of Scientific Management. ये दो किताबें थी और दोनों पब्लिश हुई, जिसके थ्रू मैनेजमेंट के तरीके के बारे में पता लगा कि एक इंडस्ट्री को, एक उद्योग को, एक कंपनी को कैसे मैनेज करके टॉप लेवल तक ले जाया जा सकता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हाट डिटरमाइंस दिस डिटरमाइंस डिवीजन ऑफ वर्क. Each and every individual should division of work on the basis of their specialization. Second is called authority. Third, discipline. Fourth, unity of command. Fifth, unity of direction. Subordination, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, spirit the corps. ये कुछ प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, जिसके थ्रू अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो एक प्रॉपर तरीका मिलेगा और इस प्रॉपर वे से कंपनी टॉप लेवल तक जा सकती है, बिजनेस टॉप लेवल तक जा सकता है. डिवीजन ऑफ वर्क डिटरमाइंस द स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स अकॉर्डिंग टू स्किल्स ऑफ ए पर्सन. एक पर्सन के स्किल के अनुसार अगर उसको काम दिया जाए, क्रिएटिंग स्पेसिफिक पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद इन द लेबर फोर्स and therefore increasing productivity leads to specialization which creates the efficiency of labor. By separating a small part of work, the worker's speed and accuracy in its performance increase. This principle is applicable to both technical as well as managerial work. This can be made useful in case of project work too. Planning it to decide what to do before. तो इंसान की काबिलियत के अनुसार उसका डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए. इससे उसमें इफ़िशियंसी आएगी, और अगर इफ़िशियंसी से काम होगा, स्पेशलाइजेशन से काम होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस इशू ऑफ कमांड फॉलोड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दियर consequences. Authority means the right of superior to give enhanced order to his subordinates. Responsibility means obligation for performance. This principle suggests that there must be parity between authority and responsibility. They are coexistence and go together, and two sides of the same coin, and the authority must be commensurate with responsibility. ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलता है कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ऑथोरिटी है कमांड करने के लिए, तो टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अपने नीचे की चीज़ों को सबऑर्डिनेट करे और सही ढंग से देख रेख करे. इससे क्या होगा कि कंपनी के टॉप लेवल पे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस, प्रॉपर
conduct in relation to others, respect of authority, etc. If there is a proper functioning discipline pattern in a particular type of organization, then organization will be run very smoothly, and that organization can touch the highest point. So discipline plays an important role, due to which there is a system that is called code of conduct, and code of conduct is very important for managing a system. Unity of command. This principle states that every subordinate should receive orders and to accountable to one and only one superior. डायरेक्टर लेवल का आदमी सबॉर्डिनेट को देता है, सबॉर्डिनेट लेवल का आदमी जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑर्डर देता है, प्रोजेक्ट मैनेजर सुपरवाइजर को देता है, सुपरवाइजर फोरमैन को देता है, फोरमैन वर्कर्स को देता है। इस तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड होती है। और यूनिटी ऑफ कमांड ऑल्सो मेक्स इट ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक्स। ईच एंड एवरी लेवल पे अगर कमांड होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है ईच एंड एवरी लेवल के सबऑर्डिनेट का, एंड द अथॉरिटी शुड बी कॉमनसेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार सभी लोग अपने अपने प्रोपर काम को करते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑल दोज वर्किंग इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी मस्ट अंडरस्टैंड एंड परस्यू द सेम ऑब्जेक्टिव। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डैट मीन्स टॉप लेवल जूनियर लेवल को, जूनियर लेवल उससे जूनियर लेवल को इस तरीके से वर्क करता है और सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, जिससे कि ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजर शुड वर्क प्रॉपर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द organization. It seeks to ensure unity of action, focusing of efforts and coordination of strength. That is very important for the developing company. Subordination of individual interest. Each and every management must put aside personal consideration and put company objective first. पर्सनल जो इंटरेक्शन है उसको छोड़ करके कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फर्स्ट ऑफ ऑल रखना चाहिए। देयरफॉर द इंटरेस्ट ऑफ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिवेल ओवर द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर पार्टिकुलर पर्सन के इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को देखा जाए तो इससे कंपनी डूब सकती है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल होना चाहिए, पर्सनल गोल नहीं होना चाहिए। रीन्यूमरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द वर्कर्स. Workers must be paid sufficiently, as this is a chief motivation of employee and therefore greatly influence productivity. The quantum and method of remuneration payable should be fair, reasonable and rewarding of efforts. Remuneration is paid to worker as per their capacity and productivity. The main objective of an organization is to maximize the wealth and the net profit as well. For this purpose, the organization had paid wages, salary and benefit to their staff properly and scientifically, so that organizational efficiency can be ensured. If the remuneration is not sufficient for the workers move out. वर्कर चले जाएंगे और चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी को काफ़ी लॉस होगा। नए नए वर्कर रोज़ आएंगे, रोज़ उनको सिखाना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी अंतर पड़ेगा, मार्केट एनालिसिस नहीं हो पाएगा, और मार्केट एनालिसिस नहीं हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, द अमाउंट ऑफ पावर विल्ड विद द सेंट्रल मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन कंपनी साइज। कंपनी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है सेंट्रल मैनेजमेंट, और ईच एंड एवरी मैनेजमेंट हैज सम पावर्स and that power is subsidiary powers, and that powers come through the top level to the junior level. The organization should strive to achieve a proper balance, so there should be a proper balance to each and every level of management and coordination also. स्केलर चैन होना चाहिए, स्केलर चैन टॉप लेवल से लेकर के जूनियर लेवल तक होना चाहिए, और ईच एंड एवरी लेवल तक डैट मीन्स कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग होनी चाहिए। जैसे ये दिखाया गया एनिमेशन से गैंग प्लांक ब्रिज बनाया गया और इस तरीके से एक सिस्टमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। तो ईच एंड एवरी सिस्टमेटिक पैटर्न हैज ए स्केलर चेन। ऑर्डर, सोशल ऑर्डर इंश्योर द फ्लूइड ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी थ्रू authoritative procedure. Material order ensures safety and efficiency in the workplace. Order should be acceptable and under the rules of the company. ऑर्डर एक्सेप्टेबल होना चाहिए कंपनी के रूल्स के अनुसार, और ईच एंड एवरी पर्सन को इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर के कंपनी इफिशिएंटली और डिसिप्लिन के साथ काम करेगा। इक्विटी, एम्प्लॉई मस्ट बी ट्रीटेड काइंडली एंड जस्टिस मस्ट बी इन्हेंस्ड टू इंश्योर ए जस्ट वर्क प्लेस। एक प्रॉपर और सफिशिएंट और सेफ वर्क प्लेस बनाने के लिए इक्विटी होना चाहिए। मैनेजर शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल व्हेन डीलिंग विथ एम्प्लॉइज, giving equal attention towards all employees. Each and every employee should be paid equal attention, due to which
there should not be any type of the conflict between the employees. If there is any type of conflict between the employees should not work properly and the company should be declined. Stability of personal, each and every individual who is hired by a person, hired by a company should run for a longer period. अगर किसी एम्प्लॉय को कोई कंपनी हायर करती है तो ज़्यादा दिनों तक पोजीशन पे बना रहे, इससे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी रहेगी, वो कुछ सीखेगा और डैट मीन्स अपने एक्सपीरियंस का अनुभव अपने जूनियर्स को दे सकता है। तो डैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। हर रोज़ नया एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है कंपनी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इनिशिएटिव मिलनी चाहिए ईच एंड एवरी पर्सन को, और जो लोग किसी वर्क प्लेस को जनरेट करते हैं, किसी प्लान को लेकर के आते हैं या किसी इनोवेटिव वर्क को करते हैं, उनको ज़्यादा एफोर्ड करना पड़ता है किसी कंपनी को रन करने के लिए। तो डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डैट मीन्स प्रोमाइजिंग इनोवेशन, डेयर टू ट्राई द लीडिंग एज। साहस भी उनमें होनी चाहिए किसी चीज़ को ट्राई करने के लिए, ये नहीं कि पहले ही सोच के बैठ जाए कि नहीं ये हो नहीं सकता है। इससे क्या होगा कि वो इंसान किसी चीज़ को कर नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। स्पिरिट द कॉर्प्स, ये एक अलग पॉइंट है। दिस रेफर्स टू द नीड ऑफ मैनेजर टू इंश्योर एंड डेवलप मोरल इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस सूटेबल होना चाहिए, एफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, सबको एक अच्छा वर्किंग प्लेस मिलना चाहिए। इंडिविजुअली एंड कम्युनिकली टीम स्पिरिट हेल्प डेवलप एन एटमोसफियर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ऐसा होना चाहिए कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉई अपने आप को सेफ और सुरक्षित समझे और ऐसा लगे कि उसके कि हम एक अच्छी जगह पे वर्क कर रहे हैं, एक अच्छे एटमोसफियर में वर्क कर रहे हैं, हमारे पास ट्रस्ट है और उसको बेनिफिट मिले उससे, तो काफ़ी दिनों तक उससे काम करेगा और अपने उद्योग को बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट कर सकता है। सो स्पिरिट होना चाहिए, उसको लगाव होना चाहिए। जैसे कि ये दिखाया गया है टाटा एंड कंपनी, जो टाटा थी 1907 में सबसे पहले स्वर्णरेखा और करकई नदी के किनारे एक प्लांट लगाया गया था जिसका नाम था टिस्को। और टिस्को के बाद टाटा धीरे धीरे डेवलप करने लगा। आज टाटा बहुत सारे जगहों पे है और बहुत सारी जगहों पे काम कर रहा है, इसका वेल्थ भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि टाटा इंडस्ट्रीज आज के डेट में एक जाना पहचाना इंडस्ट्रीज है और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के जूनियर लेवल मैनेजमेंट तक होने के कारण ही टाटा इज ए इंडस्ट्रियल इज नॉट ए businessman, due to which he was just going to working for the security of their staffs and also providing a better atmosphere for surviving of their employees. यू कैन सी टाटा के बहुत सारी चीज़ें हैं। टाटा चाय से लेकर सुई से लेकर के जहाज तक बनाता है और डैट मीन्स ये सारी चीज़ें टीम वर्क प्लेस के कारण ही हो पाया है, डायरेक्टिव के कारण हो पाया है, मोटिवेटिव के कारण हो पाया है। खुद टाटा ने ही अपने एम्प्लॉइयों को एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है। जो इन्वायरमेंट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को नहीं मिलता है वो टाटा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो डैट मीन्स एक बढ़िया वर्क प्लेस मिलने के कारण ही ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज आर जस्ट गोइंग टू वर्किंग विद टाटा इंडस्ट्रीज एंड टाटा इंडस्ट्रीज इज जस्ट गोइंग टू डेवलपिंग डे टू डे। डैट मीन्स ये दिखाया गया है टाटा जैगुआर कार भी बनाता है, टाटा पावर भी है और टाटा कम्युनिकेशन के फील्ड में है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी है, टाटा नमक भी बनाता है। और डैट मीन्स कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चीज़ें हैं। एक कहानी बताई जाती है कि टाटा किसी ज़माने में जैगुआर जैसी कंपनी के साथ टाई अप करने की कोशिश करी थी, तो जैगुआर यह कह करके टाई अप नहीं किया कि हम टाटा जैसे कंपनी से टाई अप नहीं करते हैं। आज जैगुआर टाटा के अंदर ही काम कर रहा है। तो डैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट and due to which a company can develop day to day. These are the major points and we should understand that point clearly. And if you are just going to starting a entrepreneurship, so you have to keep that points in point of view. Thank you. You can also note the point टाटा के पास और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टाटा स्टील हो गया, टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, टाटा और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसे हम टाटा ग्रुप के नाम से जानते हैं। टाटा ने एक नैनो कार भी बनाई थी जो मार्केट में सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन टाटा के पास आज बहुत सारी चीज़ें हैं, एरो स्पेस से लेकर के डिफेंस तक भी काम करता है। तो डैट मीन्स वी कैन से डैट टाटा इज जस्ट वर्किंग एज ए टाटा ग्रुप and due to which it just going to providing different types of the facility to their employees, and due to which it is just going to develop day to day. It is also in wholesale market as well as that means called consumer market, and due to which Tata is just going to developing day to day. And thank you, that is all about the lesson.